कांग्रेस के सीनियर स्पोक्सपर्सन अर्शदीप खडियाल जो है इस समय सुर्खियों में बन चुके हैं। कारण क्या है कि अर्शदीप खडियाल अमनदीप कौर जिसके ऊपर जो कि नशे का वो जो थार वाली जो बीबी के नाम से बड़ी फेमस हुई थी उसका वो केस लड़ रहे थे, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की बात की जाए चाहे भाजपा की बात की जाए, लगातार अर्शदीप कलेर को इस मामले पे घेर रही है। कारण क्या है कि अर्शदीप कलेर जो है वो कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन अक्सर वो कई मुद्दों को लेकर, खासतौर पे नशे के मुद्दे को लेकर अक्सर जो है वो घेरते रहते हैं सभी पार्टियों को। अब ऐसे में वही अर्शदीप कलेर जिसके ऊपर इस तरीके के आरोप है, नशे के जो आरोप है उसी का वो जो केस लड़ रहे थे, इसको लेकर जो है भाजपा की तरफ से सबसे पहले जो सीनियर आगू है उनकी तरफ से एक ट्वीट किया जाता है और उसके बाद बिल्टेज पन्नू जो आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन है उनकी तरफ से एक ट्वीट किया जाता है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि अर्शदीप कलेर ने इस पूरे मामले पर किस तरीके का क्लैरिफिकेशन दिया। लगता है भारतीय जनता पार्टी कोले मुद्दे खत्म हो गए जो लोगों ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਰਡਰਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਡਨੈਪਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫੈਕਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੇਲ ਮੈਟਰ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਐਮਪੀ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2G ਸਕੈਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2G ਸਕੈਮ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੇਲ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ ਲਾਇਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨੇ ਵਿਦ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜੋ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨੇ ਵਿਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼। ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੇ ਹੈ ਬਿਆਨ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਗਾਰੂ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ 'ਚ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ, ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਡੀਏ ਦਾ, ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਐਸੈਟਸ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਐਸਏਟੀ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਰ 3 ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲੇ ਜੇ ਮੁੱਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। तो आपने अर्शदीप कलेर को सुना, वो इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन देते नजर आए कि वो क्योंकि पेशे से वकील हैं और वो प्रोफेशनल लाइफ को अपना बिल्कुल अलग रखते हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जो स्पोक्स पर्सन है वो भी कांग्रेस का, जो रिप्रेजेंट कांग्रेस को करता है और वो अक्सर जो नशे के मुद्दे को लेकर लगातार वो सरकार को भी घेरता है और बाकी विपक्षी पार्टियों को भी कांग्रेस जो घेरती है, वैसे में वो इस तरीके का क्लैरिफिकेशन कैसे दे रहे हैं। अब आइए आपको सुनाते हैं कि विनीत जोशी ने क्या कहा। नशे के व्यापार के कारण से, पंजाब के अंदर नशे के कारण से बहुत सारी माताओं ने अपने जवान बच्चे खो दिए, बहुत सारी बहनों ने अपने जवान पति खो दिए। बहुत सारे ऐसे घर हैं, 10 से ऊपर उदाहरण मेरे पास हैं, जहां जनरेशन ख़त्म हुई, घर के बाहर ताला है क्योंकि उनका कोई वारिस नहीं बचा। उस पंजाब के अंदर जहां कांग्रेस लगातार नशे के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती हो, उस कांग्रेस का मुख्य प्रवक्ता अर्शदीप खडियाल उस लेडी कांस्टेबल को हाई कोर्ट में डिफेंड करे जिसको खुद उसी की पंजाब पुलिस ने नशे के आरोप में गिरफ्तार किया है। हालांकि खडियाल ये कहते हैं, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जो वकील हैं उस लेडी के, वही कहते हैं कि मैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में उसको बचा रहा हूँ। अरे भले मानस, वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी जो पैसा है, जो आमदन से ज़्यादा उसके पास जायदाद है, वो भी तो नशे के व्यापार से आई है। तो नशे के व्यापार कहाँ से उसके पैसा आया है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। वकालत गुनाहगारों को बचाने के लिए नहीं होती, वकालत गुनाहगारों को सज़ा देने के लिए होती है। और पंजाब में नशे से ऊपर कोई बहुत इससे बड़ा कोई अभिशाप है नहीं, और इसके साथ जो खड़ा है उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और ख़ास करके आखिर में कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वड़िंग, कांग्रेस के विपक्ष के पंजाब में नेता सरदार प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व मंत्री बरगट सिंह, सुखपाल खैरा जवाब दें कि क्या
वो इस बात से सहमत हैं कि पंजाब कांग्रेस का मुख्य प्रवक्ता नशा तस्करों को कोर्ट में खड़ा होकर बचाए। विनीत जोशी का भी आपने सुना, वो कहते हैं कि वो क्योंकि कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके की बयानबाजी उनकी सही नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर अर्शदीप कलेर ने इस तरीके के साथ कैसे रिएक्शन दिया, इस तरीके का बयान दिया। अब ये भी कहा जा रहा है कि चाहे राजा वड़िंग हो या फिर प्रताप बाजवा हो या फिर और कांग्रेस के सीनियर लीडर हो, वो इसके ऊपर अपना क्लैरिफिकेशन दे। आखिर अर्शदीप खडियाल के लिए किस तरीके के जो है वो अब इसके ऊपर एक्शन करते हैं। बलतेज पन्नू ने भी क्या कहा। अर्शदीप खडियाल के लेकर कई तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब इसको लेकर ये भी जो कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अब कांग्रेस इसके ऊपर किस तरीके की बयानबाजी करती है, कांग्रेस का किस तरीके का रिएक्शन रहता है, अब ये देखना बड़ा अहम रहेगा। लेकिन इसको लेकर लगातार जो है सत्ता की सरकार, विपक्षी पार्टियां जो कांग्रेस को घेर रही हैं। कैमरामैन अर्जुन के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।